Hello, my dear kids. Now we are going to start chapter 7 from your IMO Olympiad workbook for grade 6, and the chapter name is fractions. In this chapter, we are going to discuss about fractions. In the given number line, the value of b plus c minus a. Okay, इस नंबर लाइन पर वैल्यू निकालनी है b plus c minus a. And what is bca? This is a, this is b, and this is c. First, we need to find out the value of ABC. So you can see that here 0 and here is 1. Then there's total how many parts? 1, 2, 3, 4, 5 parts are there. The value of A is 1 by 5. This is 2 by 5. This is 3 by 5. This is 4 by 5. Okay. And here the value of 1 to between B and C, between 1 and 2. The value is here that this is 1 is to 1 by 5. 1 is to 2 by 5, 1 is to 3 by 5, 1 is to 4 by 5, 1 is to 5 by 5. Okay, so this is the value of B, this is the value of C, and this is the A. Value of A is 1 by 5. Okay, value of B is 1 is to 2 by 5. B is equal to 1 is to 2 by 5, and C की value क्या है? That is 1 is to 4 by 5. 1 is to 4 by 5. Okay, so this is A 1 by 5. B value is, this is mixed fraction, we need to change into proper fraction, that is 5 ones are 5 and plus 2 7. Okay, we multiply with this digit and add here. Okay, so 5 ones are 5 plus 2 7, so 7 by 5 is B, and C is 5 ones are 5 plus 4 9, 9 by 5. So A value is 1 by 5, B is 7 by 5, and C is 9 by 5. Now, what was the question? Question was B plus C minus A. So B plus C minus A, that will be, B की value क्या है? That is 7 by 5 plus C की value 9 by 5, and minus A यानी B की value, A की value 5. You can see that denominator is equal in all these three terms, so we will take 5 common here. Okay, then here it will be 7, this is plus 9, this is minus 1. Okay, 5 is the 5, so there will be same the value as it is. So 7 plus 9 16, 16 minus 1 is 15 upon 5. So value is 15 by 5, and 5 3s are 15. So what will be the answer? Answer will be 3 here. B plus C minus A की वैल्यू क्या है? 3. B is right answer. Next question is, what is the difference in the shaded fraction of the given figure? देखो shaded fractions 2 है यहाँ पर फिगर, so fraction निकालते हैं पहले फिगर्स की. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो इसमें दो तरीके से फ्रैक्शन निकल सकता है. लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट हमें यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, बट ये क्या है, हाफ स्क्वायर्स जो है वो शेडेड है. ओके, या तो हम इन स्क्वायर्स को भी हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन बनता है वो इक्वल फिगर्स होने चाहिए तभी बन सकता है. ओके, या फिर मैं क्या करूँ कि इन सारे स्क्वायर्स को मैं फुल में चेंज कर दूँ. ओके, नाउ मैंने हाफ ट्रायंगल्स में चेंज कर दिया. देन आई विल मेक द फ्रैक्शन दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 16 पार्ट्स हो गए, 16 ट्राइंगल्स. ओके, एंड कितने ट्राइंगल शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल शेडेड है. तो 6 by 16 इज द फ्रैक्शन हेयर. यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो विल टेक स्क्वायर. This is 1 2 2 3 4 5 6 here. टोटल ये क्या हो जाएंगे? 6 यहाँ है और 6 यहाँ, तो 6 plus 6 12 plus 6 18 टोटल स्क्वायर्स हैं. और शेडेड कितने हैं उसमें से? 1 2 3 4 5 6 आर शेडेड. तो 6 by 18 सेकेंड का फ्रैक्शन आ गया. ओके, फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या है? 6 by 16. सेकेंड का है 6 by 18. वी विल कट हेयर 6 1s are 6 6 3s are 18. तो सेकेंड का फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 by 3. Here 2 3s are 6, 2 8s are 16. और फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या बन गया? 3 by 8. फर्स्ट फिगर का फ्रैक्शन है, और सेकंड फिगर का फ्रैक्शन क्या आ गया? 1 by 3. नाउ द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेडेड फ्रैक्शन. तो डिफरेंस फाइंड करना है हमें, तो दैट इज 3 by 8 minus 1 by 3. ओके, यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है. हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. तो व्हाट वी विल डू, देखो ना तो 3 की टेबल में 8 आएगा, ना ही 8 की टेबल में 3 आएगा. दे आर नॉट फैक्टर्स विद ईच अदर. तो हम क्या करेंगे,
इस डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और इसको किससे करेंगे, 8 से। 1 इंटू 8 एंड 3 इंटू 8। अब आप देख सकते हो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9, 8 24, माइनस में 8 1 8 एंड 8 3 24. Now denominators are same. 24 is common now here. Then 9 minus 8. 9 minus 8 is equal to 1. Then 1 by 24 is the answer of this question. Okay, difference is 1 by 24. B is right answer here. Question 3 is what fraction must be subtracted from this to get this? To get this इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा what fraction must be subtracted, तो let's check x must be subtracted. Okay, so इस fraction में से 7 3 into 10 में से x को माइनस करते हैं, then we will get 6 into 2 by 5. Okay, now solve it. 7 into 3 by 10 minus x is equal to, that is 6 2 by 5. 6 2 by 5. मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। 10 7 70 प्लस 3 73 by 10 minus x and this is 6 5 30 plus 2 32 by 5. Okay, now you can see that here 73 by 10 minus x and this is 32 by 5. तो what we will do, x यहाँ माइनस में है, हमें पॉजिटिव वैल्यू आंसर चाहिए, तो वी विल टेक x दिस टू दिस एंड 32 by 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में. ओके, डिजिट एक्सचेंज करने से क्या होगा, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. 73 by 10 माइनस 32 by 5, क्योंकि 32 by 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वी विल टेक इट प्लस साइन. तो प्लस साइन लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर x क्या है, माइनस है, देन इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, नाउ यू कैन सी दैट अगेन इट इज अ डिफरेंट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर. ओके, 5 क्या है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, तो हम इस डिजिट को अबव एंड बिलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द सेम डिनोमिनेटर. 73 by 10 minus 32 2s are 64 by 10 is equal to x. Okay, now we will take 10 common here. Okay, 73 minus 64 is x. Then 73 minus 64 is, by value what will be here, 30 minus 4, that is 9 by 10 is equal to x. तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 by 10. दिस इज 9 by 10 here, तो a is 9 by 10. यानी कि इसमें से 9 by 10 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस वैल्यू प्लस दिस इक्वल टू द, देखो 12 by 18 इक्वल है x प्लस 7 by 39 इज इक्वल टू 42 by y प्लस 32. देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y, हमें पहले x और y को फाइंड करना है और देन इन दोनों को ऐड करके हमें वैल्यू निकालनी है. ओके, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की निकालते हैं. 12 by 18 इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 7 अपॉन 39, x प्लस 7 अपॉन 39. ओके, नाउ वी नीड टू गेट द वैल्यू. 12 by 18, देखो 6 2s are 18, 6 2s are 12, 6 3s are 18. ओके, that is x plus 7 by 39. तो 2 by 3 is equal to x plus 7 by 39. Now we need to make the same denominator. तो 13 3 is 39, we know that. तो 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा. ओके, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ओनली डिनोमिनेटर, तो हमें वो डिजिट जिससे हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं उसे ऊपर नीचे दोनों तरफ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, x प्लस 7 अपॉन 39, तो अभी हमारी डिजिट क्या बन जाएगी, 26 डिवाइड बाई 39 इज इक्वल टू x प्लस 7 बाई 39. ओके, अब इक्वल के दोनों साइड दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो वी विल कट इट. तो वैल्यू क्या रह गई हमारी, 26 इज इक्वल टू x प्लस 7. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26. अब देखो 7 यहाँ प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस. तो 26 माइनस 7 दैट इज 19 इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमारे पास 19 आ गई. अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. y भी अगेन किसके इक्वल है, 12 by 18 के यहाँ पे गिवन है. तो 12 by 18 इज इक्वल्स टू व्हाट, 42 अपॉन y प्लस 32. 42 अपॉन में y प्लस 32. ओके, नाउ अगेन 6 2s are 6 3s are 2 by 3 इज इक्वल टू 42 y प्लस 32. नाउ देखो 42 यहाँ है गिवन,
अब हमें क्या करना है, 42 के सामने वाली डिजिट भी 42 बनानी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज यस 21 2s are 42, ठीक है। तो 21 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को मल्टीप्लाई और 21 को डिवाइड, ओके। देन 42 इज इक्वल टू y प्लस 32, 21 2s are 42, तो 42 इज इक्वल टू बाय 63 इज इक्वल टू 42 y प्लस 32। नाउ 42 कट हो गए, y वैल्यू क्या आ गई, 63 इज इक्वल टू y प्लस 32। नाउ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 63 माइनस 32 इज इक्वल टू y, देन वैल्यू विल बी दिस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 31। हमारे पास क्या आ गया है, y 31 है और x क्या है 19, ओके। x की वैल्यू क्या आई 19 और y की वैल्यू क्या आई 31, दोनों को ऐड करना है, that will be 10 and this is 5, 50. See, 50 is the right answer here. Next question is, what is the sum of the shaded fraction of the given figure? Shaded fraction, तो पहले तो हम shaded fraction निकाल लें इस फिगर की। तीन फिगर्स गिवन है, तीनों का फ्रैक्शन निकालते हैं। फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं, दिस इज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट शेडेड हैं। सेकेंड वाले में टोटल कितने पार्ट्स गिवन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स गिवन है और 3 पार्ट शेडेड हैं। एंड थर्ड वाले में 6 पार्ट्स गिवन है और 2 पार्ट शेडेड हैं, ओके। तो यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं, दैट इज 4/10 फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर है 3/9 और थर्ड फिगर है 2/6, 2/6 है थर्ड फिगर, फर्स्ट सेकेंड और दिस इज थर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो हम इसे सिंपल करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो ये वैल्यू आ गई 2/5, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1/3, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये भी 1/3। नाउ दे आर सेइंग सम ऑफ दिस शेडेड फ्रैक्शन, सम निकालना है हमें तीनों का, तो 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आप देख सकते हो तीनों का क्या है, फ्रैक्शन डिफरेंट है और दोनों तरह के नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इनका एक कॉमन नंबर निकालना है जो कि सब में डिवाइड हो जाए, तो हम क्या निकालेंगे 15, ओके। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो देखो 5 वाला है इसे 15 में चेंज करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 5 इंटू 3, ओके। प्लस में ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, 5 3 15 होता है, तो 3 इंटू 5 15, और यहाँ पर भी 3 गिवन है तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 2 3 ज़ा 6/15 प्लस ये क्या हो गया 5/15 प्लस ये क्या हुआ 5/15, ओके। 15 सब में कॉमन आ गया, देन 6 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 6 5 11 प्लस 5 16, 6 प्लस 5 11 plus 5 16/15, okay. So 16/15 we will be changing into mixed fraction it 16/15, then it will be 16, 15 ones are 15, 1 as remainder, so 1:1/15 will be answer here. 1:1/15 means D is right answer. Next question is, what fraction of numbers from 1 to 30 are composite number? देखो 1 to 30 composite number क्या होते हैं, in previous chapter I explained that what are prime numbers and what are composite number. Still I'll give you brief idea that प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके फर्दर फैक्टर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो फैक्टर्स से मिलके बनते हैं, लाइक आई टेल यू 1 to 30 है ना, यहाँ पर 1 इज प्राइम नंबर, 2 इज एक्चुअली 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी काउंट होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 भी 1 है और सिंगल 1 भी 1 है, एंड 2 प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 2, ओके, अदर देन 1 कोई फैक्टर नहीं है इसका। 3 इंटू 1 3, तो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर जिनका अदर देन 1 कोई फैक्टर नहीं है। 4 क्या है, 2 इंटू 2, दिस इज कंपोजिट नंबर, ओके, जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 5 क्या है, 5 इंटू 1 प्राइम नंबर, ओके, दिस इज प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट, सॉरी। इसी तरह से 6 क्या है, 2 इंटू 3, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पे आई एम गिविंग सर्कल, ओके। एंड 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 7। 8 क्या है, 2 इंटू 4, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। 9
3 into 3, so this is composite number. 10, 2 into 5, composite number. 11, 1 into 11, so this is not composite number. 12, 4 into 3, 13, 1 into 13, तो 12 तो composite number है लेकिन 13 prime number है. 14, 7 into 2, composite number. 15, 3 into 5, composite number. 16, 2 into 8, composite number. 17, 1 into 17, not composite number. 18, 9 into 2, composite number. 19, 1 into 19, not composite, prime number. 20, 2 into 10, composite number. 21, 3 into 7, 21, composite number. 22, 11 into 2, composite number. 23, 1 into 23, this is not composite number. 24, that is 8 is a 24, composite number. 25, 5 into 5, composite number. 26, 13 into 2, composite number. 27, 9 into 3, this is also composite number. 28, 7 4s are 28, this is also composite number. 29, 1 into 29, prime number. Okay, and 30 is 6 5s are 30. तो 1 to 30 हमें क्या फाइंड करने थे? ओनली कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर काउंट कर लें कितने बने. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19. ओके, तो 1 से लेके 30 की काउंटिंग में ओनली 19 नंबर ऐसे थे जो क्या थे? कंपोजिट नंबर, और बाकी सारे क्या है? प्राइम नंबर्स. तो 19 by 30 इज द फ्रैक्शन ऑफ द कंपोजिट नंबर. A is right answer. Next question is, which of the following fraction comes on the third position from last if we arrange these fraction in ascending order? देखो, which of the following fraction comes on the third position from the last. Okay, हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में डालना है. तो सबसे पहले तो इन फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है? प्रॉपर सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में चेंज करना है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 by 14 comma 1 by 4 comma that is next one क्या था? 4 by 7 and 3 by 8. 4 by 7 and 3 by 8. ओके, पहले तो हमें क्या करना है? इन सब फ्रैक्शंस का एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो कि इन सब में आता है. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि इसके कॉमन मल्टीपल आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, इसके मल्टीपल फाइंड करके, बट मैं आपको बता देती हूँ इसका 56 जो है इन सबका कॉमन मल्टीपल है. ओके, तो 56 अगर कॉमन मल्टीपल है तो हमें 14 4s are 56. ओके, ये 14 4s are 56, दिस इज 7 8s are 56 और यहाँ पर 8 7s are 56. तो यहाँ पर 56 इन चारों में कॉमन मल्टीपल है, तो हम इससे पहले तो क्या करेंगे? कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और नीचे और ऊपर दोनों साइड. देन 20 एंड दिस इज 56. फर्स्ट की वैल्यू आ गई. 1 by 4 में 14 14 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 14, दिस इज 56. थर्ड के अंदर 4 by 7 इंटू 8 और 8, तो 32 by 56. और फोर्थ वाला 3 by 8 है, तो 7 7 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 21 by 56. तो यू कैन सी दैट हमारे पास चारों डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं. देन वी विल टेक कॉमन डिनोमिनेटर हेयर 56. अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 20. देवर सेइंग कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में डालना था, एडिंग नहीं है. दैट इज वैल्यू पहले हम यहाँ पे सारी डिजिट एक साथ लिख लेते हैं. 20 by 56, 14 by 56, 32 by 56 and 21 by 56. ओके, अब यू कैन सी दैट हेयर डिनोमिनेटर आर सेम. तो ऊपर की डिजिट से स्टार्ट करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर बनाना है हमें. सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 14 by 56, उसके बाद सेकेंड डिजिट क्या है? 20 by 56, थर्ड डिजिट है 21 by 56 एंड फोर्थ डिजिट है 32 by 56. दिस इज ऑल अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर. अब दे आर आस्किंग व्हाट इज द which following fraction come in on the third position from last. लास्ट से थर्ड पोजीशन पे कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है? तो लेट्स चेक. लास्ट से थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, लास्ट है इसे थर्ड पोजीशन पर आ रहा है 20 by 56.
देखो ये फर्स्ट पोजीशन है हमारी, ये लास्ट पोजीशन है, और लास्ट से थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है 20/56। ओके, तो 20/56 हमारी लास्ट से थर्ड पोजीशन है, बट हमारे पास ये सॉल्व फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हम इसे सॉल्व फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखो अभी किस पे डिवाइड होगा, दिस इज 4 से डिवाइड करें, 4 5 जा 20, दिस इज 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5/14 क्या है हमारा लास्ट से थर्ड फ्रैक्शन, तो 5/14 मतलब बी इज राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amit bought 4:1/2 liter of milk. He used this liter of milk in making sweets and much quality and how much quantity of milk is left. देखो इतना मिल्क उसने लिया, इतने मिल्क से उसने क्या किया, स्वीट्स बना ली, अब कितना दूध बच गया है दे आर आस्किंग। तो टोटल 4:1/2 मिल्क ही बोट एंड 3:2/3 मिल्क ही हैज मेड यूज फॉर स्वीट। ठीक है, दिस इज बॉट। तो पहले तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 2 8 प्लस 1 9/2, 3 3 9 प्लस 2 11/3। ओके, इतना उसने खरीदा, इतना उसने स्वीट्स में यूज किया, तो बचा हुआ मिल्क कितना है, दैट इज 9/2 माइनस 11/3 इज इक्वल टू व्हाट। तो वापस वही प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं इसके। तो हम चेंज करते हैं फ्रैक्शंस को, प्रॉपर डिनोमिनेटर को प्रॉपरली सेम डिनोमिनेटर में, दैट इज 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर आ जाएंगे, 9 3 जा 27/6 माइनस 11 2 जा 22/6, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 27 माइनस 22 क्या वैल्यू आ गई, दैट इज 5/6। ओके, 5/6 इज द लेफ्ट मिल्क हेयर, 5/6 लीटर मिल्क विल बी लेफ्ट, ए इज द राइट आंसर हेयर। Question number 9 is, in which of the following figure the unshaded portion represent? 2/3. Unshaded portion. Look at this thing. ओके, जनरली किड्स के माइंड में क्या होता है, शेडेड पोर्शन के बारे में फ्रैक्शन पूछा जाएगा, शेडेड का वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, ये पूछ रहे हैं अनशेडेड पोर्शन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, और अनशेडेड कितने हैं 1 2 और 3, तो 3/6 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फ्रैक्शन क्या आया 1/2। यहाँ पर बी पार्ट में देखिए टोटल 3 पार्ट पोर्शन है और अनशेडेड कितने हैं 2 हैं अनशेडेड, तो 2/3 दिस इज द मैचिंग विद दिस, तो बी इज द राइट आंसर हेयर। बट बाकियों के फ्रैक्शन भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। यहाँ पर सी में क्या है, टोटल 4 पार्ट्स हैं और अनशेडेड कितने हैं 3 है, तो 3/4 इसका फ्रैक्शन है। और फोर्थ वाले में देखो 2 जो हैं स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं, हमें क्या करना है, इक्वल ट्रायंगल्स बनाने हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हमें फ्रैक्शन निकालना होता है फिगर्स का, तो हमारे सारी फिगर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने इन रेक्टेंगल्स को ट्रायंगल्स में चेंज कर लिया। नाउ टोटल ट्रायंगल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, टोटल क्या है 12 रेक्टेंगल ट्रायंगल्स हो गए, और अनशेडेड कितने हैं 1 2 3 4, फोर्थ क्या है अनशेडेड है, 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आ रहा है 1/3। हमारा आंसर है 2/3 जो कि बी आंसर है, इसलिए बी इज राइट आंसर। Next question is, Vikas had 168 stickers. He gave 3/8 of the stickers to his father and 2 of his remaining stickers to his brother. देखो पहले उसके पास 168 स्टिकर्स थे, अपने फादर को 3/8 दे दिए, उसके बाद उसने अपने ब्रदर को दिए हैं 2/5, बट किसमें से, रिमेनिंग स्टिकर्स में से, मतलब 168 में से जितने स्टिकर्स फादर को दिए उसमें जो स्टिकर बच गए उसमें से उसने 2/5 अपने ब्रदर को दिए हैं, ना कि 168 के 2/5। ओके, हाउ मैनी स्टिकर्स वर लेफ्ट विद हिम, ये रिमेनिंग जो वर्ड है ना इस पे ध्यान दीजिएगा। रिमेनिंग स्टिकर्स मीन्स कि फादर को देने के बाद जो बचे हुए स्टिकर्स थे उसका 2/5 उसने अपने ब्रदर को दिए। सो लेट्स डू इट क्वेश्चन। 168 का 3/8 उसने दिए फादर को, तो 168 का 3/8 पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा ये, दैट इज 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21 3 जा 63, 63 स्टिकर्स अपने फादर को दिए। टोटल 168 उसके पास थे, 63 फादर को दिए, तो उसके पास कितने स्टिकर्स रह गए 105 स्टिकर्स। ओके, ये रिमेनिंग स्टिकर्स हैं, ये उसने अपने फादर को दे दिए। अब जो रिमेनिंग स्टिकर्स हैं उसका उसने कितना परसेंट 2/5 अपने ब्रदर को दिए, तो 105 का उसने 2/5 किसको दिए, अपने ब्रदर को, तो इसकी वैल्यू क्या आई 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 2 जा 42, ये स्टिकर्स अपने क्या दिया है ब्रदर को दिए। ओके, नाउ दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी लेफ्ट विद हिम। अब ब्रदर को देने के बाद उसके पास कितने बच गए, 105 उसके पास ऑलरेडी थे, 42 उसने ब्रदर को दिए, तो कितना बच गया 5 - 2 3, 10 - 4 6, 63 स्टिकर्स लेफ्ट विद हिम। ओके, 63, वेयर इज 63, सी इज राइट आंसर हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? लेट्स चेक। 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू हाफ माइनस 1/4। देखो 1 माइनस 3/4 ऐसे हम सिंपली सेम डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, तो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या बन गया? दैट इज 4/4 माइनस 3/4, तो इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। इसका डिनोमिनेटर अगर हम सेम करेंगे 2 के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/4 माइनस 3/4, दैट इज 2/4 माइनस 1/4। ओके, तो 4 कॉमन आया, 4 माइनस 3 1, और 2 माइनस 4 कॉमन आया, 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1, तो 1/4 दोनों साइड वैल्यू आ गई, तो यस दिस इज करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, ट्रू, और यू कैन से दैट दिस इज करेक्ट। ओके, हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट करेक्ट निकला। सेकंड क्या है? 5 1 5 प्लस 4 9/5, और ये कह रहे हैं क्वेश्चन 3 1 3 प्लस 1 4/3। ओके, तो यू कैन सी दैट हम इसे फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते फ्रैक्शन को, तो 9/5 क्या है? जो बड़ा है 4/3 से। इज इट ओके? दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, लेट मी टेल यू हाउ। हम इसे वापस वही मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल कॉमन फ्रैक्शन में बदल देते हैं, दैट इज 5 3 15, तो 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, एंड दिस इज 4/3 है ना, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 9 3 27 एंड 5 3 15, यहाँ पर 5 4 20, और दिस इज 5 3 15। अब आप देखिए कि 9/5 की वैल्यू क्या आ रही है? 27, और इसमें क्या आ रही है? 20, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। यस दिस इज करेक्ट, तो बी भी करेक्ट है यहाँ पर, ये भी ट्रू है, करेक्ट ऑप्शन है। हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट वन, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज 9/7, दैट इज यहाँ पर 1:1/8 बड़ा है, तो 1:1/8 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या बन गया? 9/8। यहाँ पर है 9/8 और ये है 9/7, तो विच वन इज बिगर? 9/7 इज बिगर। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वापस से हम चेंज कर लेते हैं। 9/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, और यहाँ पर दूसरे वाला क्या है? 9/8, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। ओके, तो अब क्या बना? 9 8 72/56, और यहाँ पर उधर 63/56। ओके, तो विच वन इज बिगर? दिस वन इज बिगर, 63 वाला? नो, 72 वाला बिगर है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो बड़ी डिजिट किसकी है? 72 की, तो 9/7 की साइड क्या है? बिगर है, ना कि 1:1/8 की, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, और राइट आंसर हियर दिस इज रॉन्ग और इनकरेक्ट। एंड फोर्थ वन यू कैन ऑल्सो चेक इट कि 1:1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, डिवाइड भी किया 4 से, एंड माइनस 1/4, तो 4/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पर क्या बन गया? दैट इज 4 माइनस 1 क्या बना? 3, 3/4। ओके, तो विच वन इज बिगर? 1/2 बिगर और 3/4 बिगर? ऑब्वियसली 3/4 इज बिगर, तो ये पार्ट भी क्या है? करेक्ट है। तो रॉन्ग पार्ट कौन सा है? ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3 2/5 माइनस 1:1/5, 3 माइनस 2:1/5 प्लस 1:1/6 माइनस 4/5। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिजिट हम लिखते हैं, दैट इज 3:2/5, 3:2/5 माइनस 1:1/3 माइनस 2:1/5 प्लस 1:1/6 माइनस 4/5, ये हमारी डिजिट है। ओके, पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा इसे, सो लेट्स डू इट। 5 3 15 प्लस 2 17/5, माइनस 3 1 3 प्लस 1 4/3, माइनस 5 2 10 प्लस 1 11/5, प्लस 6 1 6 प्लस 1 7/6, माइनस 4/5। ओके, अब हमें इसका एक कॉमन फैक्टर फाइंड करना है जो इन सब के साथ जाएगा, तो वो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? दैट इज जिसे डिनोमिनेटर सारे सेम हो जाए। तो देखो, अगर मैं 60 कर सकती हूँ, देखो 5 6 30,
3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। ओके, तो इसे 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 जो है इन सब में कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे 17 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई, 6 से ही डिवाइड। ठीक है, माइनस 4 को इसे 30 बनाए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड। देन 11 के लिए 5 6 जा 30, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। देन एडेड 7 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। एंड इसमें 4 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। ओके, अब हमारा क्या बन गया, 17 6 व्हाट इज द 17 6 दैट इज 102 डिवाइड बाय 30, माइनस 40 डिवाइड बाय 30, माइनस 66 डिवाइड बाय 30, प्लस 35 डिवाइड बाय 30, and this is 24 divided by 30. 30 is common in all. Now 102 minus 40 minus 66 plus 35 minus 24. तो अब हम क्या करते हैं, प्लस, देखो 102 के पहले कुछ भी नहीं है मार्क, इसका मतलब ये क्या है, प्लस डिजिट है, तो प्लस और प्लस को ऐड कर लेते हैं और माइनस वाली डिजिट्स माइनस 66 माइनस 40 और माइनस 24 को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट क्या बनेगी, I'm erasing here for some space. So this will be, देखो 102 प्लस कितना था 35 प्लस की डिजिट है, दोनों का प्लस क्या हो गया है, दैट इज 137। ओके, और यहाँ पर माइनस वाला डिजिट क्या है 40 66 और माइनस 24। अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो क्या बन जाएगा 10, ये हो गया 10 प्लस 30 130। ओके, तो 137 प्लस का डिजिट है और 130 माइनस का हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे माइनस को ऐड कर दिया ताकि माइनस का एक डिजिट मिल जाए। आप इसे सिंपली वैसे भी कर सकते हो कि 102 में से पहले 40 माइनस करो, फिर 66 माइनस करो, फिर 35 ऐड करो, देन 24 माइनस करो। या फिर हम क्या करते हैं, माइनस वाले डिजिट सारे एक तरफ कर दिए और प्लस वाले सब एक तरफ कर दिए। प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लिया, माइनस वालों को सबको एक साथ ऐड कर लिया। उसके बाद जो ग्रेट सिंबल आया एडिशन के बाद वो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि हमने माइनस माइनस वाले ऐड किए हैं, तो इन सबका एडिशन जो होगा उसका सिंबल भी माइनस रहेगा। तो 137 माइनस 130 क्या बन गया, अपॉन में क्या है 30, ये बन गया 7/30। ओके, तो 7/30 क्या है, आंसर है हमारा इन सबके सॉल्यूशन के बाद। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द अनशेडेड फ्रैक्शन, किसको, अनशेडेड फ्रैक्शन को ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें अगेन अनशेडेड फ्रैक्शन निकालना है, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। तो पहले तो हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स हैं और अनशेडेड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 पार्ट अनशेडेड हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो पहले का फ्रैक्शन क्या आ गया 1/3। दूसरे में निकालते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 5 5 5 5, टोटल कितने हो गए 20 पार्ट्स हो गए। अब अनशेडेड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्या है, अनशेडेड पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 7 जार 14, 2 10 जार 20, तो 7/10 क्या आ गया, इसका फ्रैक्शन आ गया 7/10। थर्ड में आर का निकला, जो वो क्या है 1 2 3 4 5 और 5 ये होंगे, तो 10 क्या है टोटल पोर्शन। अनशेडेड कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 फ्रैक्शन आ गया आर का हमारे पास। और एस का फ्रैक्शन क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पोर्शन है। अनशेडेड है 1 2 3 4 5 अनशेडेड पोर्शन है। ओके, नाउ दे आर सेइंग अरेंज द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। ओके, तो हमारे जो पोर्शन है वो क्या क्या है, 1/3, देन 7/10, देन 1/2 और लास्ट वन क्या था 5/8, तो 5/8। अब क्या है, पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है अगेन, दैट इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो 3 2 8 10 इन सबका हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 2 4 जार 8 होता है, बट 10 यहाँ पर बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर सबको 30 इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आएगा, 8 5 जार 40 होता है, तो 40 क्या रहेगा, इन सबका कॉमन फैक्टर हो सकता है, नहीं 3 में नहीं आएगा 40, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 120 जो है इन सबका कॉमन फैक्टर आएगा। ओके, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको फैक्टर्स चैप्टर में समझा चुकी हूँ। ओके, प्राइम फैक्टर्स में आप प्लीज उस चैप्टर को ढंग से कीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप फैक्टर्स बनाना भी सीख लेंगे।
तो फैक्टर यहाँ पर 120 इन सब में कॉमन फैक्टर है। अब मैं क्या करूंगी, 120 बनाने के लिए 1/3 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 40 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या बन जाएगा, करते जाएंगे। 7 के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 120 बनाना है, 12 से मल्टीप्लाई और 12 से ही डिवाइड। नेक्स्ट क्या है, 2 को क्या बनाएंगे 120 बनाने के लिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 60 डिवाइड बाई 2 × 60 डिवाइड बाई 120, देन 84 डिवाइड बाई 120, दिस इज 84, दिस इज 60 डिवाइड बाई 120 एंड दिस इज 75 डिवाइड बाई 120। नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बिगेस्ट सबसे पहले, क्यू सबसे पहले आ गया, 840 डिवाइड बाई 120, दिस इज क्यू। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ रहा है एस, ठीक है, दैट इज 75 डिवाइड बाई 120, यहाँ पर क्या आ गया, क्यू के बाद एस। थर्ड नंबर पर आएगा आर, 60 डिवाइड बाई 120, दैट इज आर। और फोर्थ नंबर पर 40 डिवाइड बाई 120, दिस इज पी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे के तरफ जा रहे हैं हम। तो क्यू एस आर पी इज द राइट आंसर, क्यू एस आर पी, सी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following alphabet represent 9/4 on the given number line? 9/4, 9/4 देखो, ये नंबर लाइन आपके पास गिवन है, ठीक है। पहले तो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में ये नंबर लाइन डिवाइड की हुई है 0 से 1 तक। तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, दिस इज 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और दिस इज 5/8। एल की वैल्यू क्या आ गई, 5/8। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 2, तो 1:2/8। और यहाँ पर आर की वैल्यू 1:, फोर्थ नंबर है 1 2 3 4, तो 1:4/8 आ गई आर की वैल्यू। ओके, और एन की वैल्यू क्या है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 1:5/8। देन यहाँ पर 2 आ चुका है पूरा, 2 के बाद ये फर्स्ट नंबर हो गया 1, दिस इज 2, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:2/8। एंड क्यू की वैल्यू 3 4 5, ये वाला 6 है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:6/8। ओके, दिस इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एल एम एन पी क्यू। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द we need to find which of the following alphabet represent 9/4। अब 9/4 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फ्रैक्शंस को, तभी पता लगेगा हमें। तो हम यहीं पर लिख लें 5/8 फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज एल। और एम क्या है, 1:2/8, ये है एल। 1:2/8 क्या है, एम। अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 8 1 8 प्लस 2 10, तो क्या बन जाएगा 10/8। ओके, 10/8 को अगर हम फर्दर चेंज करते हैं, 2 4 8, 2 5 10, तो ये m की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। ओके, ये भी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 9/4 को। थर्ड वन इज 1:4/8, 1:4/8 सिंप्लीफाई करेंगे हम, 8 1 8, 8 प्लस 4 12/8। ओके, दैट इज 4 2 8, 4 3 12, तो 3/2 वैल्यू आ गई किसकी, n की। ये भी 9/4 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या आ गया, एल एम, ये आर था। नेक्स्ट वाला है पी, पी की वैल्यू 2:2/8, सॉरी एन की वैल्यू निकालनी है हमें। एल एम आर पहले था 1:4/8 और एम एन कितना है 1:5/8, तो ये तो वैल्यू थी आर की। अब एन की निकालनी है 1:5/8, सॉरी 5 नहीं आएगा, एक मिनट। एम यहाँ पर था 2/3 4 5 6, ये 6/8 है, 5/8 नहीं है, यहाँ पर 1 का गैप भी है। तो n की वैल्यू क्या है, 1:6/8, तो 8 1 8 और 6 14/8, तो ये कितना बन गया, 2 4 8 एंड 2 7 14, तो 7/4 अगेन जो n की वैल्यू है वो 9/4 नहीं आ रही है। नेक्स्ट वन है 2:2/8 p की वैल्यू, तो 2:2/8, 8 2 16 प्लस 2 18, 18/8, दैट इज 2 4 8, 2 9 18, 9/4। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू है 9/4, p की वैल्यू है। तो p हमारा क्या है, राइट आंसर, जिसकी वैल्यू क्या है 2:2/8, दैट इज इक्वल टू 9/4। सो c इज राइट आंसर हेयर।